Good morning, students. Today I am here to teach you grammar. Students, grammar is an important part of any language. I am here to teach you English grammar, and right from the beginning, I want to teach you from parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई बुक्स में भी लिखे रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्टूडेंट्स, इन असेंबली, इन एनी national festivals, you have got the chance to deliver your speech. Speech means होता है भाषण। हम जो भी स्टोरी या कोई भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स का यूज करते हैं। कई वर्ड्स उसमें नाउन का काम करते हैं, कई वर्ड्स वर्ब का काम करते हैं, कई वर्ड्स किसी के क्वालिटी को बताने के लिए काम करते हैं। तो all the words in English are divided into 8 parts according to their work and meaning. जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, वो अपने काम के मुताबिक, अपने मीनिंग के मुताबिक वो 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। All the words are divided into 8 parts according to their work and meaning. They are called पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस में इनके अलग अलग काम हैं और इसके आधार पर इन्हें 8 पार्ट में बांटा गया है। इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सो नाउ लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्टली, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Students, in your earlier classes you might learn about noun, pronoun, verb. So again we start from noun. सबसे पहले हम noun को देखेंगे। Noun, what is noun? Anything that have a name. You look around yourself and you find so many things and we call anything by its name. तो आप अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हो उसका कोई ना कोई नाम होता है। Actually students, noun and names are basically same but pronounced differently. तो all the naming words, the name of a person, place, animal, things, the name of our emotions, that are defined as noun. अब noun के भी different kinds हैं, noun के भी different kinds हैं, उसको हम लोग देखेंगे। So students, first noun. Noun के 5 types हैं। First, proper noun. Proper noun. What is proper noun? Proper noun is the special name. Proper noun is a special name given to a person, a place, an animal or anything. ये खास नाम होते हैं जो किसी आदमी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। They are the special names
given to a person place things etc. ये स्पेशल नेम्स होते हैं जो किसी आदमी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है। जैसे एग्जांपल देंगे इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री एंड इंडिया इज प्रॉपर नाउन। गंगा, ओके। CPS, not all the schools are CPS. It is a special name given to this school. So these are the examples of proper nouns. Now second, इसको अच्छे से समझते जाएंगे। कॉमन नाउन, students, the second type of noun is common noun. Common nouns are the common names given to each and every individuals of a same class. Students, what are common nouns? Common nouns are the common names given to each and every individual of a same class. एक ही तरह के क्लास, एक ही तरह के कैटेगरी में पाए जाने वाले सभी का एक ही नाम जब हम देते हैं तो उसे कॉमन नेम्स बोलते हैं, कॉमन नाउन्स। एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे काउ। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट and remaining parts of the noun, remaining type of the nouns are here and we will discuss one by one about it. Collective nouns. Students, collective nouns, it shows collection. Collection से ही collective nouns बना है। When we speak or of people, animal or things collective, जब हम किसी लोगों के या जानवरों के या सामान वस्तुओं के ग्रुप की बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन्स होता है। जैसे एग्जांपल क्लास में, क्लास क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें ये स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। सो इट शोज द कलेक्टिव नाउन्स। टीम इज द ग्रुप ऑफ द प्लेयर्स, सो इट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन्स। नाउ फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या है बच्चों? A material noun is a name given to the material from which things are made. Material nouns उस पदार्थ को बोलते हैं जिससे कोई सामान को बनाया जाता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड हेयर shows material nouns। अब जैसे गोल्ड से गोल्ड रिंग बनते हैं, ईयर रिंग्स बनते हैं, नेकलेस, सो मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम गोल्ड। सो गोल्ड जो हो गए वो आपके मटेरियल नाउन हो गए। इस तरह से फ्लोर से क्या क्या बनते हैं? ब्रेड बनते हैं, चपातीज बनते हैं, सो मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम फ्लोर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। नाउ द फिफ्थ वन एंड लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिससे हमारे मन के भाव का पता चले। इट इज द नेम ऑफ आवर फीलिंग्स। हमारे
लाइफ के स्टेट का पता चले, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। वी कैन नॉट सी और टच दिस, ओनली वी कैन फील दिस नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल एंगर, जैसे हम बोलते हैं गुस्सा, गुस्सा को तो हम देख नहीं सकते बट इसको केवल फील किया जाता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। ये किसी के मन के भाव में उत्पन्न होता है, किसी चीज को जब हम देख के बोलते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है, तो वो हमारे मन का भाव होता है।